Continuing with integrals, हमने कल miscellaneous exercise के question number 1 to question number 17 देखे थे. It was named part 1 and part 2. Today we are moving ahead with part 3. I'm naming them part 1, part 2, part 3 so that all the miscellaneous questions will be all together. Okay. So let's start with question number 18th today. So question number 18th is a star mark question. This is a question that you have to, understand and remember its principle. You will have to understand कि actual में जो भी किया वो क्यों किया. Because मैं हमेशा क्या कहता हूँ, denominator में जितना कम expansion हो उतना अच्छा है. Yes or no? Yes. Yes. यही कहता रहता हूँ कि denominator को expand मत करो, denominator को expand मत करो. But यहाँ पे in this particular case, I will expand the denominator. Let's see what is going to happen in this question. 1 by root के अंदर ये इकलौता ऐसा question है जहाँ पे मैं denominator में थोड़ा सा expansion करता हूँ. तो sin cube x ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस अल्फा है, उसको मैं लिख रहा हूँ sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा. Any problem anyone? No, sir. No, No, sir. sir. Now मैं कहता हूँ कि इसमें से cos sin x कॉमन ले लो इसमें से. So what I'm going to get is 1 by रूट के अंदर sin की पावर 4x ब्रैकेट में cos अल्फा प्लस cot x into sin alpha. Yes or no? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. If we take this sin की power 4 out of this root, what are we going to get? Sin square x. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. And if I do the reciprocal Yes, of the sir. sin square x, will I be getting cos x square x? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. हो गया क्या question? इसको टी पुट कर दे. तो cos alpha का differentiation 0 because it is a constant. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Plus sir. cot x sin alpha, तो sin alpha ऐसा का ऐसा, cot x का differentiation minus का cos x square x. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो cos x square x dx जो है, जो हमारे पास एक्चुअल में क्वेश्चन में है, वो क्या है, आ जाएगा माइनस का 1 by sin alpha dt. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, No, sir. sir. So No, this question will be replaced as integration of minus का 1 by sin alpha dt 1 by root t. And now this integration is very simple, 1 by sin alpha into 2 root t plus c. So minus का 2 root के अंदर cos alpha plus cot x sin alpha divided by sin alpha plus. Any problem anyone? No, sir. No, sir. Are we understanding No, the thought sir. process of this question कि actual में क्या किया? Yes, sir. हमने यहाँ पे cot x बनाया and then cot x का differentiation question में ढूंढा एक तरीके से. कोई problem? No, No, sir. sir. Now No, I want to ask one question here. What if यहाँ पे cos cube x होता? So now think. Cos x common is this. Yes, Cos Cos x x common लेते cos हैं. x कॉमन लेता तो यहाँ पे tan x बनता और cos की पावर 4 बाहर आता, cos स्क्वायर होता और cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल sec स्क्वायर होता. Yes or no? तो फिर से tan Yes, x sir. बनाया Yes, और sir. sec स्क्वायर अपने Yes, पास sir. ऑलरेडी है क्वेश्चन में. So this is a thought that can be applied at different levels in different questions. So जो thought है उसके बारे में ध्यान रखेंगे कि क्या हुआ, जो sin a plus b की आइडेंटिटी होती है उसमें से sin x भी कॉमन लिया जा सकता है, cos x भी कॉमन लिया जा सकता है, उससे क्या बनता है, या तो tan x बनेगा या फिर cot x बनेगा. Are we understanding the principle here? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Note it down. And as for this particular step, I would want you to write at least 2 steps for this. ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में लिख रहे हैं सब लोग. ये तो मैंने लिख दिया है, बट जब ये लिख रहे हो अपने आप तो फिर 2 स्टेप यूज करें. Continuing with the next question, question number 19. So if you will observe, सबने observe किया होगा by now, sin inverse root x minus cos inverse root x divided by sin inverse root x plus cos inverse root x dx.
this denominator is pi by 2, which is a constant, so I don't have to worry about it. So I will write this question as 2 by pi integration of sin inverse root x को लिख रहा हूँ pi by 2 minus cos inverse root x, और फिर एक और माइनस cos inverse root x है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. And now this question is easily doable because all I need to worry about is this. Yes or no? Yes. Yes, sir. तो मैं 2 by Yes, pi अंदर sir. मल्टीप्लाई अगर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 4 by pi इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स रूट x dx. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, No, वन sir. का sir. इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो कोई प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू x है तो x आ जाएगा. यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं cos इनवर्स रूट x को क्या पुट कर दूंगा? t. रूट x क्या आ जाएगा? cos t. x क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर t. तो dx क्या आ जाएगा? माइनस का 2 cos t sin t dt. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. तो देखो एग्जाम में ना इस चीज को लिखने का एक तरीका होता है, थोड़ा सा बताऊं क्या आप इस चीज को? तो देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे x माइनस 4 बाय पाई इंटू आई. इसका आंसर क्या लिखेंगे? x माइनस 4 बाय पाई इंटू आई प्लस सी. अब ये जो i है इसको अपन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स रूट x dx. ताकि क्या होगा, लिखने का तरीका समझ में आया अपने को, तो अपने को कभी भी लोड नहीं रहेगा कि यार मुझे इसको साथ में चलाना है बार बार. तो इसको साइड में सॉल्व करके फिर वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. सबको समझ में आई क्या ये थॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली हम ये चीज लिखेंगे पूरा का पूरा एंड फिर इसको रिफ्रेश करेंगे. सो मेरे को क्या मिलेगा? i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ रूट x को हम क्या पुट करेंगे? t. और dx को क्या पुट करेंगे? माइनस का sin 2t dt. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now can we apply by parts here Yes, sir. Yes, sir. and the question will be done. So इतना नोट करेंगे, इसके आगे अपने आप करेंगे. And though I am as such I am recording, so don't need to note it down. You can always refer to it later if you feel any. Yes. तो जो लिखने का काम है वो साथ साथ में जितना लिख सकते हैं उतना लिख लो हल्का सा, बाकी का फिर अपन थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे इस चीज में ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स. सो दिस इज no partial fractions, no by part, nothing can be applied here. There's only one thing left to do and that is substitution. आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. कि कभी किसी क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं हो रहा तो you will have to substitute, और कोई तरीका नहीं है always. ऐसा कभी मैं चेंज नहीं करूंगा इस लाइन को, स्टेटमेंट को. Now substitution, what do you think we should substitute here? x को cos And- स्क्वायर है, रूट x को cos थीटा. बिल्कुल सही. This is the perfect one because its root is in chapter number 2. का जो रूट्स हैं वो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अगर आता है तो हम ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये चीज कुछ स्क्वायर आ जाए और जिसको मैं रूट के बाहर निकाल सकूं. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो वी हैव हैड Yes, sir. मल्टीपल ऑप्शंस. यहाँ पे हम कई बार हमने साइन थीटा पुट करने का भी सोचा तो हमने कहा 1 माइनस साइन थीटा. यस मैं लिख सकता हूँ cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर. 1 प्लस Yes. साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी थीटा/2 लिखना चाहिए मुझे, cos थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पहले जब मैं रूट से बाहर लूंगा तो मुझे मिलेगा cos थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 अपॉन cos थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. No, sir. No, sir. ये अपन ने पहला थॉट देखा. सेकंड थॉट, मैं इसमें cos थीटा भी पुट कर सकता हूँ. तो मैंने कहा 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2. 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2.
तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2. यस और नो? Yes. Yes. sir. एंड ऑल्सो आई कैन पुट tan थीटा हियर. अगर मैं इसमें tan थीटा पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा रूट के अंदर 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा which will not work क्योंकि मुझे कोई भी स्क्वायर नहीं मिलेगा. यस और नो? Yes. sir. Yes, मुझे sir. थर्ड ऑप्शन को तो डिलीट कर देना चाहिए. मेरे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, फर्स्ट और सेकंड. नाउ व्हाट डू यू थिंक विल बी मच बेटर? सेकंड ऑफ कोर्स, Also. क्योंकि सेकंड में मेरे को Yes. थोड़ी सी छोटी चीज मिल रही है. यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. एंड दैट इज द आइडिया दैट वी हैव अप्लाइड हियर. सो 1 माइनस रूट x को हम क्या पुट करेंगे? cos थीटा. तो x क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा. सो dx क्या हो गया? अभी अभी अपन ने ऊपर देखा था माइनस का sin 2 थीटा d थीटा. यस और नो? yes, sir. Yes. sir. Yes. तो Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ, जब मैं इसको रूट में ये पुट कर दूंगा तो मुझे पता है मेरे को यहाँ पे tan थीटा बाय 2 मिलेगा. यस और नो? Yes. sir. Yes, sir. Yes, और sir. यहाँ पे माइनस का मुझे मिलेगा 2 sin थीटा cos थीटा. अब जाहिर बात है एंगल हाफ है तो मुझे सारे एंगल्स हाफ में कन्वर्ट करने चाहिए. Yes. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो एंगल सारे सिमिलर रखेंगे तो इसको मैं लिखूंगा sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 इनटू 2. sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2. Yes. sir. And Yes, as of sir. now, I am keeping cos theta as cos theta. Let's see what will happen. Cos theta by 2 से cos theta by 2 cancel. Minus integration of 2 into, ये देखो 2 sin square theta by 2 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? Yes. Yes. sir. Any problem anyone? No, No, sir. sir. No, 2 sir. sin square theta by 2 को क्या लिखेंगे? 1 minus cos theta. 1 minus cos theta. Very good. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, No, sir. sir. No, sir. Minus integration of 2 cos theta. सॉरी मैंने 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ cos theta आएगा ना. cos theta minus cos square theta. ओके नेहा, cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का क्या तरीका होता है बेटा? 2 sin theta cos theta. भाई इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है. Yes, sir. बोलो. ओके cos स्क्वायर थीटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं बाकी कोई बताएगा? शिवानी? 1 plus cos 2 theta upon 2 लिखेंगे फिर. बिल्कुल सही. cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 plus cos 2 theta upon 2 and this question is integrable now. Yes or no? Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. So now what is going to happen देखिए, -2 ब्रैकेट के अंदर cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा माइनस 1 का हाफ बार लेता हूँ 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, No, sir. sir. अंदर मैं -2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा -2 sin थीटा प्लस का ये 1 हो जाएगा प्लस का थीटा प्लस का sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस c. I hope everyone is okay with this. Yes. sir. I would Yes, want sir. to still Yes, explain a small thing. -2 sin theta plus theta plus sin 2 थीटा को लिखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय 2 है तो कैंसिल हो जाएगा 2. Yes. sir. नाउ वापस मुझे क्या करना है, थीटा को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है. तो रूट x इज इक्वल टू cos थीटा है और x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा है. कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. No, Okay. sir. सो थीटा में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे cos थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे sin थीटा में प्रॉब्लम है. तो sin थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे? इफ आई नो द वैल्यू ऑफ cos थीटा. Right over, sir. रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर. I would use this and any 12th class student will use this. ठीक है, because Yes. it is very convenient. Don't you think it is convenient? क्योंकि मेरे को डायरेक्ट आंसर लिखने मिलता है, मेरे को कुछ भी नहीं करने की जरूरत होती है. ऑल आई नीड टू डू इज अप्लाई माय थॉट्स प्रॉपर्ली. तो माइनस का 2 sin थीटा इज रूट के अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस वैल्यू ऑफ थीटा इज cos इनवर्स रूट x
प्लस साइन थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने डिस्कस की 1 माइनस एक्स एंड कॉस थीटा की वैल्यू इज रूट एक्स प्लस। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. ओके, तो एक No, क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ सबको समझ में आया? मैंने काफी सारी बातें की इस क्वेश्चन के लिए, yes, sir. राइट? कि हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, बिकॉज जब हमारा काम रूट एक्स को टी पुट करने से नहीं बनेगा तो हमारे पास लास्ट सॉर्ट जो बचेगा वो बचेगी ट्रिग्नोमेट्री। यस और नो? Yes, sir. Yes, जब sir. ट्रिग्नोमेट्री बचेगी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में मैं तीन ही चीजें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, साइन कॉस और टेन मोस्टली। यस और नो? तो मैंने सब कुछ पुट करके Yes, देख sir. लिया, मुझे समझ में आ जाएगा क्या करना है क्वेश्चन में। एक जो बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे वो ये है कि वो dx को रिप्लेस नहीं करते और सिर्फ क्या करते हैं, tan थीटा बाई 2 को इंटीग्रेट करके खुश हो जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेवर एवर डू दिस। व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिप्लेसिंग दिस dx। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर हियर? Yes, Yes, sir. sir. थॉट Yes, समझ sir. में आता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 21 को देख के कौन सा गाना गाओगे? Denominator will be 2 cos square x. गाना 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 कहीं ये वो तो नहीं। वो तो नहीं कहीं है। ये वो तो नहीं, और ये वही है क्योंकि e की पावर x के साथ कुछ लिखा हुआ है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब e की Sir. पावर x के साथ कुछ लिखा है तो मैं गाना सोचूंगा, ठीक है, कि हाँ ये वही है। मैं तो एक बार अप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा, अब अगर अप्लाई होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर सोचेंगे कुछ और। तो यहाँ लिखा है 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट किसी के पास अगर बुक नहीं है तो मैं लिख दूं 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x लिखा है ये क्वेश्चन। तो अपन ने 2 प्लस साइन 2 साइन x cos x लिखा और 2 cos स्क्वायर x लिखा। नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट, तो 1 बाय cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x, व्हिच आई बिलीव आप सबको दिखने लगा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो e की पावर x sec स्क्वायर x प्लस tan x। कोई प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. No, sir. तो ये सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यस ये क्लिक करना बहुत जरूरी है कि e की पावर x आया क्वेश्चन में, उसके साथ में कुछ लिखा है, कहीं ये वो तो नहीं। एक बार तो अटेम्प्ट करके देखेंगे ही देखेंगे। कोई तकलीफ? No, No, sir. sir. क्वेश्चन No, नंबर sir. 22 क्या करोगे? अरे Partial fraction. बिल्कुल सही, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। जीवन में कुछ है ही नहीं तकलीफ, खुश रहेंगे हम जीवन में। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। व्हाट डू यू थिंक वी शुड सब्स्टिट्यूट? Cos theta. Cos x को theta. cos थीटा पुट करेंगे क्या? Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो dx Yes, विल sir. माइनस का sin थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स के अंदर tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा तो यहाँ पे थीटा बाय 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का sin थीटा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एंड नाउ इजीली बाय पार्ट्स अप्लाई करके द क्वेश्चन इज डन। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. क्वेश्चन नंबर 24, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 log of x square plus 1 minus 2 log x divided by x की पावर 4। ओके, सबसे पहले मैं कहता हूँ इस 2 log x को मैं लिख सकता हूँ log of x square। Yes, or no? sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और अब Yes, मैं sir. दोनों logs को डिवाइड में लिख सकता हूँ, Yes, sir. Yes, sir. तो x square plus 1 log of
x square plus 1 upon x square. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. डिवाइडेड बाय x की पावर 4. थोड़ा सा देखना एक बार ध्यान से ना, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ. रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 log ऑफ 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. यहाँ पे x की पावर 4 है क्या अपॉन में? हाँ सही है. नाउ Yes. मैंने क्या किया, यहाँ से ना x स्क्वायर कॉमन लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो x बाहर, रूट के बाहर x आएगा, रूट के अंदर मिलेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 4. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, नाउ No, x sir. की पावर 4 कैंसिल हुआ, x क्यूब. एंड अब मेरा काम डन. 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैंने क्या पुट कर दिया? t. माइनस का 2 Yes, sir. डिवाइड बाय x की पावर 3 dx इज इक्वल्स टू dt. कोई बात नहीं, -2 नहीं तो क्या हुआ? x क्यूब तो है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन को जब मैं रिप्लेस करूंगा तो मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1/2 dt x क्यूब और dx मिला के. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. no, sir. इसको लिखूंगा रूट t log t. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, No, sir. No, sir. sir. No, sir. एंड बाय पार्ट्स अप्लाई कर एंड विल बी गुड टू. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. सो एज ऑफ नाउ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास मिसलेनियस में थे, वी हैव डन. व्हाट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज miscellaneous examples. Before that we have some more questions, 41, 42, 43, 44. So I'll just restart the meeting and we'll start with part 4 जहाँ पे हम ये 4 questions करके miscellaneous examples पे move on करेंगे. Okay.